أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے ناظرین گرامی و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب ناظرین حضرات جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان سے جو متعلق مسائل تھے ان مسئلوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج کیونکہ 19 کی شب ہے، شب ضربت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مولا کے سر پر اسی رات کو ضربت لگی۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج رات کو ہم کوفہ جا رہے ہیں، مسجد کوفہ جہاں پر مولا کو ضربت لگی تھی۔ اعمال ہے، آپ لوگوں کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گا، آپ لوگ بھی اس عظیم راتوں میں ہمیں بھی یاد فرما دیجیے گا۔ تو میں نے مناسب سمجھا ان شبہ قدر کے اعمال کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ میرے ناظرین گرامی، کچھ اعمال ایسے ہیں جو الگ الگ ہر رات کے ساتھ مخصوص ہے۔ 19 کے ساتھ، شب 21 کے ساتھ، شب 23 کے ساتھ، اور پورے ماہ رمضان المبارک میں ہر رات کے ساتھ کوئی اعمال مخصوص ہے۔ آج میں وہ اعمال بیان کر رہا ہوں جو مشترک ہے، یعنی شب 19، شب 21 اور شب 23 کے مشترکہ اعمال کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس عظیم راتوں کو پا کر اپنے خالق حقیقی سے دعا مانگنے کی، اپنی مغفرت مانگنے کی ہمیں اللہ نے توفیق دی۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا عمل تقریباً کوئی 8-9 اعمال ہیں، مشترکہ اعمال۔ پہلا عمل یہ ہے کہ انسان غروب آفتاب کے بعد مغرب سے پہلے یعنی غسل کیا جائے۔ یہ مستحب اعمال میں سے ایک عمل ہے جو مشترک ہے تینوں راتوں میں، انسان غسل کرے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اسی غسل کے ساتھ آپ کو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے غسل کے ساتھ آپ مغربین کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اسی رات میں 2 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس کا اجر، اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص یہ 2 رکعت پڑھ کر یہ استغفر اللہ کے 70 مرتبہ ذکر کر کے اپنی جگہ سے نہ اٹھے گا، اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہ اور اسی کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ جو کہ عام ہر راتوں میں سب جانتے ہیں کہ قرآن کا عمل ہے۔ قرآن کو سامنے، نظروں کے سامنے کھول کے رکھنا ہے، اور کچھ دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ لیں، ذکر
किया हुआ उसमें लिखा हुआ है। और चौथा अमल ये है कि कुरान मजीद को सर पे रखकर कुछ दुआएं हैं, फिर चाहत मासूमीन के साथ जो वसीला है उसको जिक्र करना है। और पांचवा अमल ये है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि खुसूसन इन रातों में मजलूम करबला सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत सबको नसीब फरमाए, क्योंकि इन्हीं की कुर्बानी की वजह से आज हम रोज़ा रख रहे, तो इनकी मरहून मिन्नत है। आज हम अमाल बजा ला रहे हैं। आज हम हलाल और हराम के तमीज़ अगर हमें आजकल हो रहा है तो इन्हीं की मरहून मिन्नत है कि इनकी कुर्बानी की वजह से ये सब हम तक पहुंचा, हमें मालूम हुआ कि हलाल और हराम के बारे में। तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बजा लाई। कि रिवायत में है कि एक मुनादी सातवें आसमान पर अर्श के करीब आकर निदा देगा कि जो शख्स इस रात को, इन तीनों रातों में अगर मजलूम करबला की अगर ज़ियारत करेगा तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देगा। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई मजलूम करबला के ज़रीए पर पहुंच जाए। जो दूर दराज इलाकों में है, दूर दराज ममालिक में है, वो अपने खुलूस नियत के साथ अपने घर के छत पर चढ़कर करबला की तरफ रुख करके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहें खुलूस नियत के साथ, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा, अल्लाह ताला उसकी ज़ियारत कबूल फरमाएगा। ये 5। और छठा अमल जो है आज की रात जो मुश्तरक है, शब बेदारी है, यानी इंसान बेदार रहे। इस रात में सोना नहीं है, क्योंकि ये रात बार बार इंसान के हाथ में नहीं आती, बार बार इंसान को नसीब नहीं होता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी अगर इस शब-ए क़द्र में नहीं बख्शा गया, उसके गुनाह नहीं माफ हुआ, तो आइंदा आने वाले शब-ए क़द्र में जब दोबारा तौबा न करे, उस वक्त तक उसके गुनाह माफ नहीं होते। अज़ान गिरामी, नाज़रीन गिरामी, हमें क्या पता कि आने वाले शब-ए क़द्र से मुलाकात होगी या नहीं, हमारी ज़िंदगी होगी या नहीं। तो लिहाजा फुर्सत जाने, गनीमत जाने, नियामत जाने, इन्हीं रातों को अल्लाह ताला से मांगने की कोशिश करें। इस शब-ए क़द्र में अगर कोई बेदार रहे, जो शख्स इन रातों में जागता रहे, अमल करता रहे, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमाएगा। अगरचे उसके गुनाह देखे कि कितना अजर, कितना सवाब है, कि अगरचे उसके गुनाह आसमानों के सितारों के बराबर हो, पहाड़ों के वजन के बराबर हो, और दरिया में जितने पानी है समंदरों में, उस पानी के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला इस बंदे की इस शब क़द्र की इबादत की वजह से, बेदारी की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमाते हैं। जरूरी नहीं है हर आमाल को बजा लाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। अगर कोई नई आमाल बजा ला सकता है, सिर्फ बेदारी की हालत में अल्लाह ताला की नियामतों का फिक्र करे, सोचे, गौर फिक्र करे, सबसे बेहतरीन अमल यही है। अपने वजूद के अंदर जो नियामतें अल्लाह ने दी है, आँख की नियामत है, ज़ुबान की नियामत है, हाथों की नियामत, पाँव की नियामत, और जिस्म के अंदर जो नियामतें अल्लाह ने हमें दी है, उन्हीं नियामतों को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करें, वही बड़ी इबादत है। अगर कोई और अमल अंजाम न दे सके तो बेदारी जरूरी है, कि बेदारी के इतने अजर और सवाब हैं। ये 6। 7वीं ये है कि 100 रकात नमाज पढ़नी है। उसमें हर रकात में सूरे
हमद के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ना है, अफजल तरीन इबादत है। अगर कोई नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं होता, तो वो एक जिस तरह सुबह की नमाज पढ़ते हैं उस तरह भी अगर बजा लाए तो काफ़ी है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, खुद ये अमल है, ज़रूरी वाजिब नहीं है कि इसके अजर बहुत ज़्यादा है, मुस्तहब अमल है कि 100 रकात नमाज पढ़े। अगर किसी के ऊपर हाँ क़ज़ा नमाजें अगर हैं तो वो क़ज़ा नमाजें पढ़े, क्योंकि अगर ये मुस्तहब अमल न करे तो कल क़यामत में नहीं पूछा जाएगा, अज़ाब नहीं होगा। अगर करेंगे अमल तो आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। अगर वाजिब अगर छूट जाए तो कल क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर किसी के ऊपर वाजिब नमाजें हैं क़ज़ा, तो 6 दिन के तकरीबन नमाजें पढ़ ले तो कोई 102 या 104 तकरीबन रकात बन जाते हैं। 6 दिन की क़ज़ा नमाजें पढ़ें, ये भी बेहतर है। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए कि इन्हीं रातों में अल्लाह ताला से मांगने की अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। ये 7वां अमल। 8वां अमल ये है कि शब क़द्र की रातों में जो मखसूस दुआएं हैं, मुकम्मल पूरी दुआ तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि वक़्त के दामन में गुंजाइश में नहीं है। अभी इस वीडियो को आप लोगों के लिए अपलोड भी करना है, उसके बाद फिर वफ़े की तरफ निकलना है। तो एक दुआ है, आप मफातिह में मुराजा करें, अल्लाहुम्मा अमसैतु लका अब्दन दाखिरन ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। ये छोटी दुआ है, इतनी लंबी बड़ी दुआ नहीं है, ये इब्तिदाई दुआ है। इससे आखिर तक आप मफातिह में देख के, ये मुश्तरका अमल है, तीनों रातों में आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 9वें और आखिरी अमल जो मुश्तरक अमाल में से है वो ये है कि वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने अजीज व अकारिब के लिए दुआ करें, और इन तीनों रातों में जो शंद कबीर पढ़े। कि अगर ज़रूरी ये है कि हम पहले अपने लिए दुआ करने के बजाय गैरों के लिए दुआ करें, रिश्तेदारों के लिए, कौम कबीले के लिए, अजीज व अकारिब के लिए, जो दुनिया से चल बसे हैं, जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, जिनका कोई जिक्र करने वाला नहीं है, उनकी नियाबत में आप अमाल करें। तो रिवायत में है कि जो शख्स गैर के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला कई मलाइक को उसके लिए मुख्तस करते हैं, उस बंदे के लिए, तो वो मलाइका उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। तो जाहिरी बात है, मलाइका क्या है, मासूम है। एक मासूम अगर किसी के लिए दुआ करे तो उसकी दुआ तो फौरन 100% यकीन कबूल हो जाती है। तो इसीलिए हमारे आइमे मासूमीन की ज़िंदगी में आप अगर देखें तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हर वक़्त शब क़द्र की रात हो, दूसरी रातें हो, नमाज तहज्जुद में मुसल्ला इबादत पे खड़ी होकर हर वक़्त हमसायों के हक़ में, गैर के हक़ में दुआ किया करती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन पूछते हैं, अम्मी जान आप हर वक्त दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए कभी दुआ नहीं की है? तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि ये बेटो, अज्जार सुम्मद्दार, जरूरी ये है कि पहले अपने हमसायों का हक अदा करें, हमसायों के लिए दुआ करें, उसके बाद फिर अपने लिए दुआ करें। जब हम गैरों के लिए दुआ करेंगे तो हमारे हक में फरिश्ते दुआ करेंगे, हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। और पैगंबर से पूछा गया कि इस तीनों रातों में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो मासूम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल ये है कि इस रातों में अल्लाह ताला से सेहत मांगे और आफियत मांगे। वाकई अगर इंसान के पास सेहत हो, आफियत हो, तो हर अमाल इंसान अंजाम दे सकता है। बहुत बड़ी नियामत है इंसान के लिए सेहत। अगर इंसान के पास सेहत हो तो हर काम इंसान कर सकता है। अगर इंसान के पास इस अजीम सेहत जैसी नियामत को अगर अल्लाह ताला छीन ले तो इंसान किसी काम का नहीं रखता, कोई काम नहीं कर सकता जब तक इंसान की सेहत सही ना हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है, पाक परवरदिगारा हमारी इस कलीद इबादत को अपने दरगाह में कबूल मंजूर फरमा। पाक परवरदिगारा हम सबको इन रातों में, खुसूसन शब क़द्र की रातों में, हमें
सही बंदा बनकर आपकी बंदगी करने की हमें तौफीक इनायत फरमा, और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने की हमें तौफीक इनायत फरमा, और हमारी गुनाहान कबीरा व सगीरा इन रातों में माफ़ फरमा। बाकी परवरदिगारा हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। व आखिर दावाना